کریم آغا ایک کہانی میری کتاب مکالمے کا قتل سے۔ میں ہوں خواجہ اشرف۔ سب کا خیال تھا کریم آغا ایک عجیب و غریب آدمی ہے۔ وہ عجیب و غریب تھا یا نہیں، لیکن وہ سوچتا سب سے جدا تھا۔ شاید یہ اس کا جدا سوچنے کا انداز تھا جو اسے دوسروں سے الگ کرتا تھا، اور یہ کوئی آج کل کی بات نہیں تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، اس کے خاندان کے سب افراد کا ماننا تھا کہ کریم آغا ان سب سے مختلف ہے۔ کریم آغا کے والد ماجد جمیل آغا ایک مذہبی آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تہجد گزار تھے۔ ان کا معمول تھا گرمیوں سردیوں میں صبح 3 ساڑھے 3 بجے اٹھتے، گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم پانی سے غسل کرتے، اس کے بعد تہجد کے نوافل ادا کرتے، پھر گھنٹہ بھر قرآن کی تلاوت کرتے، اس کے بعد مسجد جا کر باقاعدہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے۔ نماز کے بعد اہل قبور کی زیارت کو جاتے اور اس کے بعد بازار میں واقع اپنی بیکری کی دکان پر چلے جاتے۔ کریم آغا کی والدہ ماجدہ کریمہ بی بی بھی نہایت نیک، شریف اور نماز روزے کی پابندی کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ تہجد گزار تو نہیں تھیں، لیکن وہ بھی جمیل آغا کے ساتھ صبح ہی صبح اٹھ جاتی، اٹھ کر مسواک کرتی، وضو کرتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتی، نماز کے بعد کشمیری چائے اور پراٹھا بناتی، چائے تھرماس اور پراٹھا ٹفن کیریئر میں ڈال کر کریم آغا کے حوالے کرتی کہ بیکری پر لے جا کر حاجی جمیل آغا کو ناشتے کے لیے دے آئے۔ حاجی جمیل آغا صبح ہی صبح اپنے بیٹے کریم آغا کو دیکھ کر ناخوش ہوتے، لیکن ناخوشی کا اظہار کیے بغیر اس سے تھرماس پکڑ کر کپ میں چائے ڈالتے، ٹفن کیریئر سے پراٹھا نکالتے اور ناشتہ کرنے بیٹھ جاتے۔ وہ جب تک ناشتہ کرتے، کریم آغا خاموشی سے ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ نہ جمیل آغا اس سے کچھ کہتے، نہ وہ ان سے کچھ کہتا۔ باپ بیٹے میں خاموشی کا یہ رشتہ ہمیشہ سے نہیں تھا، صرف چند سال سے باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی سچائی کی حدود کو پہچان لیا تھا۔ جمیل آغا نے شروع میں اپنے بڑے بیٹے رحیم آغا کی طرح کوشش کی کہ وہ کریم آغا کو اپنے ساتھ مسجد لے جا کر نماز کی عادت ڈالیں، لیکن ان کی کوششیں بسیار کے باوجود کریم آغا باپ کے ساتھ مسجد جا کر نماز ادا کرنے کا عادی نہ بن سکا۔ وہ عادتوں کے اعتبار سے ایک نرم خو لڑکا تھا، لیکن اسے مذہب سے سخت چڑ تھی۔ جمیل آغا اور رحیم آغا اسے پیار سے سمجھاتے کہ وہ ان کے ساتھ مسجد جا کر نماز ادا کرے، لیکن اس کا انہیں ایک ہی جواب ہوتا کہ جس دن اللہ میاں اسے خود کہے گا کہ وہ نماز ادا کرے، وہ شوق سے نماز ادا کرے گا، ورنہ مسجد جا کر وہ ان کی طرح کسی اندیکھے انجانے خدا کے لیے نماز نہیں پڑھے گا۔ 2-4 بار جمیل آغا اور رحیم آغا اسے زبردستی مسجد لے گئے، لیکن جیسے ہی وہ نماز میں مشغول ہوتے، کریم آغا نمازیوں کی صفیں چیرتا مسجد سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ کچھ دیر تک دوسرے نمازیوں نے اس کی یہ حرکت برداشت کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے جمیل آغا سے صاف کہہ دیا کہ یا تو وہ حضور کے فرمان کے مطابق اس پر سختی کریں، ورنہ اسے مسجد لانا بند کر دیں۔ جمیل آغا ایک شفیق اور مہربان باپ تھے، ان کی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ بیٹے پر سختی کریں، چنانچہ انہوں نے کریم آغا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ تھوڑا سا سیانا ہوگا تو سمجھانے بجانے سے نماز پڑھنا اور دیگر دینی امور کی پابندی شروع کر دے گا، لیکن کریم آغا ایک الگ ذہن اور الگ فطرت لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس کا یہ سب سے جدا انداز آج کی بات نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ اسکول میں داخلے کا وقت آیا تو اس نے کسی ایسے اسکول میں داخلے سے انکار کر دیا جہاں وردی کی پابندی ہو۔ اس کا کہنا تھا وردی پہن کر وہ دوسرے بچوں کی طرح دکھے گا۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح دکھائی نہیں دینا چاہتا تھا۔
शहर में कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां वर्दी की पाबंदी ना हो। आखिर जमील आगा ने अपने जानने वाले एक हेडमास्टर साहब से स्पेशल इजाजत हासिल की कि वो उनके बेटे को बगैर वर्दी स्कूल अटेंड करने दें। हेडमास्टर साहब ने इस ख्याल से कि बच्चा चंद दिनों या हफ्तों में दूसरे बच्चों की देखा देखी वर्दी पहननी शुरू कर देगा, उसे स्कूल में दाखिला दे दिया। लेकिन करीम आगा ने ना वर्दी पहनी थी ना पहनी। ताहम करीम आगा पढ़ाई में बहुत अच्छा साबित हुआ। चंद दिनों में उसने अपने टैलेंट से अपने तमाम असातिज़ा को अपना गर्विदा बना लिया। आखिरकार हेड मास्टर साहब ने उसे मुस्तकिल वर्दी से इस्तिस्ना अता कर दिया। करीम आगा का बड़ा भाई रहीम आगा भी इसी स्कूल का तालिब इल्म था। वो भी इंतहाई काबिल लड़का था, लेकिन करीम आगा की तो बात ही और थी। अब कभी उसके साथ असातिज़ा उसके साथ वर्दी पहनने की बात करते तो वो कहता, हुस्न यकरंगी में नहीं नारंगी में है, जिंदगी की खूबसूरती यकताई में नहीं तनव्वुर में है। वो नमाज ना पढ़ने की वजह पूछते तो भी यही जवाब देता कि उसे एक साथ एक जैसे बंदों का एक जैसी हरकतें करना अच्छा नहीं लगता। ये उसकी और उस दौर की बातें थी जब करीम आगा अभी बच्चा था। उसकी सोचें अभी कच्ची थीं, लेकिन जब वो सने शऊर को पहुंचा, उसकी सोचों में पुख्तगी आई तो बिल्कुल एक आज़ाद इंसान बन चुका था। मजहब से आज़ाद, रवायतों से आज़ाद और समाजी तकल्लुफ़ात से आज़ाद। अपने बड़े भाई रहीम आगा की तरह उसने भी केई कॉलेज से एमबीबीएस किया, लेकिन उसकी तरह किसी अस्पताल में जॉब करने की बजाय अपनी आज़ादी बरकरार करने के लिए बेकरी पर काम करना और अपने बाप जमील आगा की मदद करना बेहतर जाना। बाप होने की हैसियत से जमील आगा का दिल अपने बेटे की आज़ादाना रवैये पर दुखता था, लेकिन उसकी सादतमंदी और मोहब्बत की वो दिल से कदर करते थे। वो हर नमाज के बाद खुदा से दुआ करते कि वो करीम आगा को राह रास्त पर डालते, लेकिन उनकी दुआएं करीम आगा को कभी उनकी पसंदीदा हदूदों क़यूद का पाबंद न बना सकी। अब सूरत हाल यूं थी कि जमील आगा सुबह की नमाज अदा करने के बाद अहले कबूर को सलाम करने और उनके लिए दुआए मगफरत करने के बाद बेकरी पर पहुंचते और करीम आगा के लिए कश्मीरी चाय और पराठा लेकर वहां आते। वो नाश्ता कर लेते तो वो खाली टिफिन कैरियर और चाय का थर्मास लेकर घर चला जाता। जमील आगा जोहर की नमाज तक बेकरी पर रहते। मुअज्जिन जैसे ही मस्जिद के मीनार पर खड़े होकर जोहर की अजान देनी शुरू करता, उधर करीम आगा वापस बेकरी पर पहुंचकर बाप की जगह खड़ा हो जाता और जमील आगा जोहर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद रवाना हो जाते। बचपन से जवानी तक के सफर में करीम आगा की आजाद ख्याली का सारे शहर में चर्चा हो चुका था। सब जानते थे कि वो मजहब को एक बेकार मशगला समझता है जिसकी अमली जिंदगी में कोई अफादियत नहीं। वो इस ज़िमन में भी कभी मुनाफिकत से काम नहीं लेता था। वो बरमला कहता कि मजहब जिंदगी के कमजोर लम्हों में इंसान का खुद साख्ता सहारा है, जिसकी मदद से वो उन कमजोर लम्हों में मसनूई ताकत हासिल करना चाहता है। चनाचे जैसे ही जोहर के वक्त जमील आगा बेकरी से रवाना होते, करीम आगा के जानने वाले उससे बहस मुबासे के लिए वहां पहुंच जाते। इस बहस और तमहीज के नतीजे में शहर में उसके खोशा चीनों का एक खासा बड़ा हल्का पैदा हो चुका था और ये हल्का दिन ब दिन फैलता जा रहा था। खासतौर पर नौजवान उसके अफकार से बहुत मुतसर हो रहे थे। जो नौजवान उससे मुतसर थे उन्होंने उसे एहतराम की बिना पर टीचर कहना शुरू कर दिया था। करीम आगा को अपने लिए टीचर का लक़ब बहुत पसंद था। वो हकीकी मानों में था भी एक टीचर। उसे अपने लोगों की तोहम परस्ती और बेअमलियत पर बहुत अफसोस होता। उसके चाहने वालों ने उसके लिए बाकायदा एक बैठक का इंतजाम कर दिया था। अशा की नमाज के बाद जमील आगा सजदे से मस्जिद से बेकरी पर लौटते चंद मिनटों में सारे दिन का हिसाब किताब करके घर रवाना होते और करीम आगा बेकरी बंद करके बैठक पहुंच जाता। वहां शहर के बहुत से नौजवान पहले से उसके मुंतजिर होते। बैठक में बैठने के लिए वाल टू वाल कालीन बिछा था। 3 दीवारों के साथ गौ तकिए रखे थे। एक दीवार के साथ सिर्फ एक गौ तकिया रखा था। करीम आगा के वहां आते ही वो सारे के सारे दीवार के साथ लगे गौ तकियों के साथ बैठ जाते। करीम आगा अकलौते गौ तकिए के साथ बैठ जाता और फिर किसी एक मौजू पर इजहार ख्याल करता। उसके बोलने के अंदाज से लगता जैसे पहाड़ से आबशार का
पानी गिर रहा हो, ठंडा मीठा रवां और शफाफ पानी जो सुनने वालों के जहनों की गर्ज साफ करता चला जाता। उसकी गुफ्तगू आमतौर पर मजहब, फलसफे, आर्ट और नफ्सियात के मौज़ूआत के बारे में होती। वो किताबों की बजाय ज़्यादातर इंसानों के ज़ाती तजुर्बात और मुशाहदात को अपनी गुफ्तगू की बुनियाद बनाता। नतीजा ये निकलता कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है कि मिस्दाक उसकी सब बातें सामीन के दिल में उतरती चली जाती हैं। एक शब करीम आगा हस्बे मामूल बेकरी बंद करके बैठक पहुंचा तो जमील आगा भी उसके साथ चले आए। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके बेटे में ऐसी क्या बात है जो लोग इस तरह उसकी गुफ्तगू सुनने के लिए हर शब इकट्ठे होते और यूं दीवानों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। दोनों बाप बेटा बेकरी से चलते बैठक पहुंचे तो 40-50 के करीब नौजवान गौ तकियों के सहारे तीन अतराफ दीवारों के साथ बैठे थे। एक दीवार के साथ सिर्फ एक गौ तकिया था। वो सब करीम आगा और जमील आगा को देखकर उनके एहतराम में खड़े हो गए। करीम आगा ने अपना गाँव तकिया जमील आगा को पेश किया और खुद उनके साथ बैठ गया। हस्बे मामूल उसने तमाम हाजरीन पर एक उचटती सी नजर डाली और फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। इल्म मसलसल इर्तिका पजीर रहता है। इर्तिका का ये अमल अमूदी और उफ़क़ी सतह पर हमेशा जारी रहता है। ये अमल हमा वक्त ताज़ा जहनों की तलाश में रहता है। जिस कल्चर में उसे ताज़ा जहन मिलते हैं ये वहाँ हिजरत कर जाता है। जब तक वो कल्चर इल्म के इस इर्तिकाई अमल को तवानाई अता करता है, इल्म वहाँ फलता फूलता है। लेकिन जैसे ही वो कल्चर कमज़ोर होने लगता है, इल्म नए ताकत पजीर कल्चर में हिजरत कर जाता है। इस तरह इल्म खुद को ना सिर्फ ज़वाल पजीर होने से बचाता है, बल्कि अपने उफ़क़ी और अमूदी इर्तिका का सफ़र जारी रखता है। जो लोग इल्म के इस इर्तिकाई अमल में जब तक उसके साथ चलते हैं, वो दुनिया में कामयाब व कामरान रहते हैं। लेकिन जब वो अपनी फ़िक्री और समाजी हट दर्मियों की वजह से इल्म के इर्तिकाई अमल में उसके साथ चलने से इनकार कर देते हैं, वो नकारा होकर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और रफ्ता रफ्ता गर्दो गुबार में तब्दील हो जाते हैं। जिंदगी एक यकतरफा सफ़र है, उसमें कोई यू टर्न नहीं है। अफराद हों या अक़वाम, जिंदगी के इस सफ़र में वो किसी न किसी मकाम पर अटक जाते हैं। वो रुक कर सस्ताना चाहते हैं। इल्म का इर्तिका तकाजा करता है कि वो उसके हमरा चलते रहें, लेकिन उनकी फ़िक्री और समाजी हटदर्मियाँ उनकी रफ्तार को सुस्त कर देती हैं, यहाँ तक कि वो थक कर रुक जाते हैं और फिर किसी कब्र में दफन हो जाते हैं। कभी उनकी कब्र पर कतबा लग जाता है कि यहाँ फलां इब्ने फलां दफन है, और कभी हमेशा के लिए गुमनाम हो जाते हैं। जिंदगी के इस सफ़र में अफराद कब्रों में दफन होते हैं, लेकिन सकाफ़तों और तहजीबों का मदफन तारीख है। जो सकाफ़तें और तहजीबें इल्म के लिए बांझ हो जाती हैं, उसके उफ़क़ी और अमूदी इर्तिका में किरदार अदा करने से इनकार कर देती हैं, वो तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो जाती हैं। उनकी कब्रों पर इल्म के इर्तिका में अदा किए गए किरदार के मुताबिक कतबा नस्ब हो जाता है, वरना वो हमेशा के लिए गुमनाम हो जाती हैं। कोई ये जानने की ज़हमत ग्वारा नहीं करता कि वो कौन थे और उनका मस्कन किन गारों में था। करीम आगा बोल रहा था। गाँव तकियों के साथ बैठे नौजवान उसकी गुफ्तगू पूरे इन्हमाक के साथ सुन रहे थे। जमील आगा भी करीब बैठे अपने बेटे करीम आगा की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनके चेहरों पर बैठक में जलती रोशनियों की लौ परछाइयां बनकर लर्ज रही थी। करीम आगा बोल रहा था और जमील आगा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज वो अपने बेटे करीम आगा को एक मुख्तलिफ रोशनी में देख रहे थे। करीम आगा ने गुफ्तगू ख़त्म की तो वहाँ बैठे हाजरीन की तरफ से सवालात का सिलसिला शुरू हो गया। करीम आगा इंतहाई मोहब्बत से उनके सवालों का जवाब दे रहा था। जमील आगा ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं। बैठक में बैठे सब नौजवानों की आंखें और कान जमील आगा की तरफ मतवज्जो हो गए, लेकिन उन्होंने कहा तो सिर्फ इतना, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। मुझे तुम्हारे साथ बैठना और करीम आगा की गुफ्तगू सुनना अच्छा लगा है। क्या मैं रोज़ाना इस बैठक में शामिल हो सकता हूँ? जमील आगा का सवाल सुनकर सब हाजरीन की आंखें चमक उठी। बैठक में जलती रोशनियां और तेज हो गईं। करीम आगा ने आगे बढ़कर जमील आगा के हाथों को बोसा दिया। जमील आगा ने करीम आगा को अपनी बाहों में लेकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और फिर कहने लगे,
کریم آغا تم جو بھی جیسے بھی ہو مجھے تم پر فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسا بیٹا عطا کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ وہ سب کو تم جیسے بیٹے عطا کرے۔ جمیل آغا کی بات سن کر زندگی میں پہلی بار کریم آغا کو محسوس ہوا کہ اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ تو یہ تھی صاحب آج کی کہانی کریم آغا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت، شکریہ۔